सो माई वाइफ वेंट अहेड एंड बॉट मी अ शॉटगन माइक्रोफोन, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अनवील करके साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पास फिल्म मेकिंग का इक्विपमेंट है। आई हैव गॉट कैमराज एंड सम इक्विपमेंट, मगर मेरे पास ऑडियो इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है। आई हैव नेवर बॉट एनी ऑडियो इक्विपमेंट इन माई लाइफ बिकॉज मुझे ऑडियो कुछ खास समझ में आता नहीं। तो आई हैव नेवर रियली वेंचर्ड इनटू दैट एरिया, मगर आई अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट ऑडियो इज। एंड अगर इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू समवन हु इज completely new to sound, I'm thinking this will be a very good place for you to understand how audio systems run, because I'm completely new to this myself, so I will be doing this entire process like a proper beginner. So my expectation from this microphone is that it will work wonders when compared to the internal microphone I'm already using for my mobile, because this will capture sound in a better fashion. तो हम इसको अभी unbox करते हैं, and then probably I'll do a review of this in different settings in this video itself, और अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो in the next video. So let's unbox it. Let's unbox it now. So this is a super cardioid condenser shotgun microphone. So basically it is called a shotgun microphone because it looks like a shotgun, और इसके अलग अलग साइजेस होते हैं थोड़े। ये तो खैर ऑफकोर्स दिस सम 2000 odd rupees on Amazon, तो ये दिस इज अ स्मॉलर शॉटगन, हैंडियर फॉर your mobile phones and smaller cameras. मगर shotguns अलग साइज के होते हैं because they look like a shotgun, they're called a shotgun. Although I always thought कि because probably a shotgun का जो रेंज रहता है वो काफ़ी कम रहता है, 3-4 फीट पे जो उसका फोर्स रहता है वो आपको 15-20 फीट पे कभी नहीं मिलता. So these microphones also similarly work with a similar concept because they are really good at capturing sound within a distance of 4 to 5 feet, but not really more than that. Another thing you need to understand is कि जो shotgun microphones होते हैं, they're basically omnidirectional, means कि वो लोग ऐसा जो sound रहता है वो they take it from only one direction, and they really do not bother with directions all around. So first things first, this was a surprise from my wife. There's a cute note that she left here, so I will just put it here so that it is there through and through the video. तो now Boya is basically a Chinese company, और वो लोग है सो ऑडियो इक्विपमेंट बनाते हैं which is very affordable, and they have good products because जितने भी लेपल माइक्स मैंने आज तक इस्तेमाल किए वो बोया के ही थे. So this is the box, और nothing much, it's just a normal box. यहाँ पे it's mentioned it's compatible with smartphones, tablets, laptops, cameras and camcorders. और अगर पीछे आप देखेंगे तो इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकेशंस है. जो स्पेसिफिकेशंस है थोड़ा ज़रा देयर इज़ ऑडियो लैंग्वेज jargon that I don't understand, but at some point शायद मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है. ये जो मेरा बॉक्स आया, this came without a seal. So I don't know, I think it should come with a seal technically, but मैंने Amazon से ऑर्डर किया तो there is a good chance it can be a return piece also, but I'm going to go and open it up nonetheless. तो ये हम लोग खोलने वाले हैं द बॉक्स. अब आपके साथ में रिवील होगा द बोया BY-MM1 Plus shotgun microphone. So basically it's good packaging. A couple of things that came inside the box. एक तो स्टिकर्स है बोया के, which I don't know मैं कहाँ लगाऊंगा इसे. साथ ही साथ there is a warranty card which I don't think I'll ever use. और इसमें है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसको मैं थरोली पढ़ने वाला हूँ because I want to understand everything from the scratch. So yes, so this is it. This is the microphone, और I'm just going to remove this as of now so that I can have a closer look at this. And I'm very excited because ये जो microphone है, for the money I've paid, this looks like a solidly built microphone. The quality looks really good and I really like the design. और बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे. और अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि ओमनी डायरेक्शनल माइक है कि भाई एक ही डायरेक्शन से इट पिक्स अप द साउंड. सो आप देख रहे हैं कि माइक्रोफोन इज राइट हियर इन द फ्रंट, एंड इट्स अ नाइस लुकिंग पीस. पीछे यहाँ पे सो बेसिकली देयर टू जैक्स हियर. वन इज़ फॉर आपका माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए आपकी डिवाइस को. दूसरा इज़ अ हेडफोन जैक so that you can monitor the sound as you're recording it. So, and I think it's a very nice touch because this will help me listen to the sound before I start actually shooting.
कि अगर कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो। तो ये तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट्स लुक्स प्रीटी गुड। उसके साथ जो आया है, तो दिस इज़ अ फ्लफी। इसे नॉर्मली माइक्रोफोन्स के सामने आगे लगाते हैं बिकॉज दिस प्रोटेक्ट्स द माइक्रोफोन फ्रॉम पिकिंग अप एम्बिएंट नॉइज, जो हवा की आवाज़ रहती है ना, उसके लिए नॉर्मली आउटडोर सेटिंग में इसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ डेड कैट एंड आई एम हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम एक्सप्लेनिंग टू हर दैट शी इज़ नॉट अ डेड कज़न, है ना पेपर। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 केबल्स है जिसकी आई गेट इनटू दिस डिटेल थोड़ी देर में। साथ में एक बैग है बोया का which is nice, but I don't think I will be using this bag for any practical purposes whatsoever. And of course there's the shock mount. Now this is basically made of plastic and honestly मुझे इसकी build quality इतनी खास लग नहीं रही है because shock mount का basically काम ये है कि it is there जिसपे the microphone will go and attach into this. So the work of the shock mount is to support the microphone as well as to absorb any shocks while you're filming so that the microphone is not disturbed much, तो कोई internal आवाज़ ना आए बोल के। इसके साथ attached एक hot shoe है और इसके 2 पर्पजेस है। तो बेसिकली ये हॉट शू, कोई भी हॉट शू जो कैमराज जो अगर आप DSLR कैमराज देखेंगे तो DSLR कैमराज के ऊपर एक हॉट शू माउंट होता है। तो बेसिकली दिस विल जस्ट स्लाइड इनटू इट एंड यू कैन जस्ट स्क्रू इट अप। अगर आपके पास ट्राइपॉड है और आप ट्राइपॉड इस्तेमाल करना चाहते हो, उनके पास यहाँ पर देयर इज अ होल हियर एज वेल, और आपने ट्राइपॉड के ऊपर उसको आप सिंपली इसको आप यू कैन जस्ट स्क्रू इट अप ऑन द ट्राइपॉड। मगर द प्रॉब्लम विद दैट इज कि अगर स्मार्टफोन से अगर शूट कर रहे होंगे तो द ट्राइपॉड इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर योर सेल फोन, तो फिर ये स्क्रू करने के लिए और एक ट्राइपॉड लगेगा, और एल्स एक्चुअली ट्राइपॉड्स आते हैं जिसमें 2 अटैचमेंट भी होते हैं। तो बट व्हाट आई विल बी यूजिंग इज द हॉट शू माउंट बिकॉज मेरे पास है ये। So now this is nothing but a normal mobile holder, मगर इसकी खासियत ये है कि इसके साथ एक हॉट शू माउंट भी दिया गया है। तो सिंस मेरे बेगम ने ये मेरे लिए ख़रीदा तो उन्होंने अपना रिसर्च किया, शी इज़ वेरी गुड एट रिसर्च एंड शी अंडरस्टूड कि भाई अगर ये ख़रीदना है और स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल करना है तो उसके साथ ये भी लेना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन सी ये बहुत आसानी से, और इसको भी ऐसे 2 होल्स है एंड यू कैन जस्ट पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड। तो यहाँ पर आप इसको बेसिकली बहुत ही आसानी से ऐसा स्लाइड करके ऑल यू हैव टू डू इज लॉक इट अप एंड इट इज़ अटैच्ड। ओके, उसके बाद आप कुछ करना नहीं है। जो आपका माइक्रोफोन है, फिलहाल तो मैं ये डेड कैट निकाल देता हूँ। आपको बस अगर आप इसको इसके अंदर प्रेस करेंगे, थोड़ा एफर्ट लगता है लगाने के लिए, बट जस्ट बी लिटिल केयरफुल दैट यू डोंट ब्रेक इट बिकॉज द शॉक माउंट इज़ नॉट एज सॉलिडली बिल्ड एज आई वुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू बी। So, but yeah, and your camera microphone is hooked. All you have to do is slide your mobile phone here and you are done. So right now I'll just put this dead cat back and I will just leave them here on the side to relax while I explore something that is the wires. Now, basically उन्होंने हमें 2 वायर्स दिए हैं और इसके ऊपर ये वायर्स के ऊपर ऐसा लेबल किया हुआ है कि वायर्स किस लिए है। तो I'll just quickly open this up. ये टैग्स खोल देता हूँ मैं दोनों के, सो दैट ज़रा कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि एक वायर में है लिखा हुआ है कैमरा, राइट, यहाँ इस पे लिखा हुआ है कैमरा और इस पे लिखा हुआ है माइक्रोफोन। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि ये आपके DSLR कैमरास के लिए ये माइक्रोफोन है। जो दूसरा केबल है वो ये वाला है, एक के ऊपर लिखा हुआ है स्मार्टफोन और एक के ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोफोन। तो बेसिकली ये जो केबल है ये आपके स्मार्टफोन में लगाने के लिए। तो नाउ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैंने मैनुअल खोली एंड आई रेड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि अगर आप इसके ग्रूव्स देखेंगे दोनों केबल्स के, तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो ग्रूव्स है, दे आर 3 ग्रूव्स इन ईच 3.5 mm वायर एक्सेप्ट फॉर दिस वन जिसमें सिर्फ 2 ग्रूव्स है। तो अपेरेंटली द वन विद 3 grooves is called a TRRS 3.5 mm cable, and the one with the 2 grooves is called a 3.5 mm TRS. So TRRS and TRS. तो बेसिकली जो डिजिटल कैमरा है उसको ये 2 ग्रुप वाला वायर लगता है, इसके लिए वो लोग ने अलग से वायर दिया है। मगर वी विल बी यूजिंग दिस वन जो स्मार्टफोन टू माइक्रोफोन वाला केबल है, एंड विल बी यूजिंग दिस टू अटैच आवर माइक्रोफोन टू द कैमरा। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज ये जो वायर है, ये जो माइक्रोफोन जो लगा हुआ है, आई विल पुट दिस इन द लाइन आउट
एंड द अदर वायर जो जिसपे स्मार्टफोन लगा हुआ है, आई विल कनेक्ट दिस टू माई मोबाइल फोन 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 आईफोन. सो एप्पल बीइंग एप्पल, ये वायर मेरे मोबाइल फ़ोन को नहीं लग सकता बिकॉज मेरे आईफोन एसी में 3.5 mm जैक नहीं है. कोई भी आईफोन में ये जैक नहीं आता. इनफैक्ट बहुत सारे हाई एंड मोबाइल्स में भी ये जैक नहीं आता, मगर मेरे पास ये है. अब ये क्या है? ये बेसिकली दिस इज़ अ 3.5 mm इनलेट जैक इनलेट टू लाइटनिंग कन्वर्टर. तो ये मुझे मिला था जब मैंने अपना आईफोन ख़रीदा था, तो वो आईफोन के डब्बे में आया था. अभी आईफोन के डब्बे में अब नहीं आता. सो इफ़ यू आर गेटिंग दिस माइक्रोफोन एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर आईफोन और एनी अदर हाई एंड एंड्रॉयड फ़ोन, you will have to get a converter of either a 3.5 mm inlet to a lightning cable or a 3.5 mm inlet to a USB-C, right? So I will quickly now plug this together and I'm going to now plug this on that. But before I do that, so this is let us do a quick sound test here. तो अभी जो है हम लोग इंटरनली ये रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू प्लग दिस वायर एंड सी के भाई वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है. सो नाउ द माइक्रोफोन इज़ फेसिंग मोर डायरेक्ट टुवर्ड्स यू. मेरे ख्याल से माइक्रोफोन में और में शायद ही 1.5 फीट का फासला होगा. एंड दिस इज़ कनेक्टेड विदाउट द डेड कैट जो माइक्रोफोन है, शॉटगन माइक्रोफोन है, और आवाज़ ऐसी आ रही है. अब मैं इसको डेड कैट लगाने वाला हूँ. डेड कैट लगाने के बाद से अब फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस आ रहा है, मगर आई एम श्योर देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस जो मैं वापस प्लेबैक में देखूंगा. और एक बार हम लोग ऐसे एक लास्ट टाइम है सो विदाउट द डेड कैट भी, विदाउट द माइक्रोफोन, विदाउट द डेड कैट इंटरनल माइक्रोफोन जो आईफोन एसी का है, उससे भी हम एक बार रिकॉर्ड करके देख लेते हैं. एंड दिस इज हाउ इट साउंड्स विद द इंटरनल माइक्रोफोन. So what I'm going to do is I'm going to be shooting tomorrow with this with the shotgun microphone at various places, and probably I will be able to put it all together and see what the difference is. So I'm here in the great outdoors, and you can see Milo sitting there like a boss. So we are here, and this test is being done without the microphone plugged in. However, this test is being done with the microphone positioned directly below the phone. So it is at the same distance, probably a little closer, but this is with the microphone attached. So I don't know whether this is sounding better, but we'll do one more test, and that is with the dead cat on. So now there is a bit of a wind, and maybe you can hear me better, maybe you cannot hear the wind. Let's try it out. So somewhere it also made sense to do a, so now the Boya microphone is attached with the dead cat on with the fluffy on distance shot. So this is me talking the dead cat on with the fluffy on. So I don't know whether it is better, I don't know how much of your shot. So this is me talking from a distance, so I don't know how clear my voice is, but we're now going to plug in the Boya and see how it works. Much of your background noise, it's breaking, but I'm going to go inside, check it out, and then probably we can talk about it. So yeah, I think pretty good. I just played it back and I think it is a good improvement. So it's a vast improvement over your internal microphones. ऐसा नहीं कि internal microphone bad है, काफ़ी अच्छा internal microphone भी, but the problem with internal microphone is कि it really captures आपकी आवाज़ के साथ साथ ये जो white noise होती है ना, जो ambient sound रहता है, जो आवाज़ चलती है ना, it is catching that also quite at the same tone as it's catching your voice. However, ये जो आपका microphone है, what it is doing is कि it is catching your sound better and is actually blocking out the white noise in the surrounding. उससे एक छोटा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई आवाज़ थोड़ी मफल सुनाई दे रही है, स्पेशली विद द डेड कैट ऑन, और ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा आवाज़ मोटी हो रही है. तो बट आई थिंक इट इज ओके एज लॉन्ग एज यू कैन हियर योरसेल्फ क्लियरली. और अगर आप ऑडियो एडिटिंग भी करते हो, अगर आप मूवीज एडिट करते हो बैठ के, तो अगर आप छोटे मोटे जो ऑडियो जो एडिट्स रहते हैं कि भाई ट्रेवल बढ़ा दिया या बेस कम कर दिया या जो वॉल्यूम है, आई थिंक व्हेन यू शूट विद द माइक्रोफोन, आई थिंक दैट इट विल गिव यू बेटर एडवांटेज व्हेन यू आर एडिटिंग. और another small problem that I think is कि भाई जब आप बाहर शूट कर आउटडोर सेटिंग में शूट कर रहे हैं, तो इट इज़ ब्लॉकिंग द एम्बियंट नॉइज क्वाइट अ लॉट मोर, एंड समवेयर यू एक्सपेक्ट कि भाई जब आप बाहर शूट कर रहे हो तो थोड़ा एम्बियंट साउंड भी कैप्चर हो, बट देन आई थिंक फॉर द सेक ऑफ यू बीइंग हर्ड, आई थिंक वी कैन सैक्रिफाइस दैट मच. वन लास्ट थिंग बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो इज कि
इसके साथ एक्चुअली मैं अमेजोन पे चेक कर रहा था, इसके साथ एक्चुअली फोम भी आता है अपार्ट फ्रॉम द डेड कैट, वो जो स्पंज टाइप जो कवरिंग होती है, दैट ऑल्सो कम्स, बट मेरे डब्बे में नहीं था, मेरे बॉक्स में नहीं था, बट एज आई टोल्ड यू कि मेरा बॉक्स वॉज नॉट सील्ड, सो इट इज समथिंग दैट यू शुड चेक आउट. बट ओवरऑल येस, आई वुड रिकमेंड दिस माइक्रोफोन फॉर बिगनर्स. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट माइक्रोफोन फॉर बिगनर्स एंड आई थिंक आई विल बी यूजिंग दिस अ लॉट मोर, एंड एज वी एडवांस we will get better audio equipment and test that out as well. But yes, right now I think this is good enough. So yeah, I hope you liked the video. Please shit. So I don't want to ask you to subscribe, but if you want to, please go ahead. It will make me happy. All right. So thank you so much. Take care. Bye bye.